Okay, so let's see what I have today. So we are, as you all are knowing, that we are discussing on a visual merchandising. So we had a lot of topics which has been covered, and again we have added a lot of new add-on things that we should know. So we know what is visual merchandising. So the goal is to attract, engage, and motivate customers to make a purchase, whether in a physical store or an online environment. तो विजुअल मर्चेंडाइजिंग क्या होता है जैसे कि ऐसा डिस्प्ले करना जिसकी वजह से हमारा सेल बढ़े और कस्टमर का बाइंग इम्पैक्ट पॉजिटिव हो और वो अच्छे तरीके से प्रोडक्ट को परचेस करें। टाइप्स ऑफ विजुअल मर्चेंडाइजिंग, विंडो डिस्प्ले, इन स्टोर डिस्प्ले हमने फिनिश कर दिया है, डिस्कशन हो चुका है और इसके लिए जो वीडियो है अपलोडेड है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। So today's topic is point of purchase, POP displays. So we have a types of POP display. Let's see. So it's a chapter 3. So types of point of purchase. So countertop display. Small displays placed on a countertops or checkout area. So when you have purchased all your product and you're going for the billing, so you'll find the counter where you'll find some kind of a different product which you buy immediately. Floor display, larger display placed on the floor near checkout area. Self-talker sign or displays attached to shelves near products. Dump bins, during last video I have explained this. Containers filled with products often placed near checkout area. Display cases, so glass or acrylic case showcasing products near checkout area. तो अब ये पॉइंट ऑफ परचेस क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप जब सारी चीजें आप खरीद चुके हैं तो हम ना आपको मोटिवेट करना चाहते हैं, इम्पल्सिव बाइंग बिहेवियर आपका स्ट्रांग करना चाहते हैं कि कुछ छूट गया है तो आप परचेस कर ले। तो हम ऐसे प्रोडक्ट को रखते हैं चेकआउट के समय जो आप तुरंत परचेस करते हैं, इग्नोर नहीं करते उसको। हाँ, जरूरत नहीं तो आप खरीदते भी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बाई। सो एक होता है काउंटर टॉप डिस्प्ले। सो जैसे आप कैश काउंटर के बजाय आएंगे तो वहां पे काउंटर पे कुछ प्रोडक्ट डिस्प्ले में रहते हैं और आप वो खरीद सकते हैं। फ्लोर डिस्प्ले, तो फ्लोर पे चेकआउट के समय जब आप बाहर की तरफ निकलते हैं बिलिंग के लिए तो उस समय आपको प्रोडक्ट दे दिया जाता है। फिर सेल्फ टॉकर, तो ऐसा साइनेज डिस्प्ले रहेगा जो अपने आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है और अ, काफी इम्पल्सिव होता है, बहुत ही अट्रैक्टिव होता है और वो प्रोडक्ट आपको चाहिए होता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला साइन और डिस्प्ले अटैच टू द सेल्स नियर प्रोडक्ट्स। तो मान लीजिए कि आप ऐसे काउंटर पे हैं जहां पे आपके डेली यूजेस प्रोडक्ट है और सडनली हमने वहां पे एक ऐसा अटैचमेंट दे दिया है जहां पे हमने पेन रखा हुआ है और ऐसा पेन है बहुत यूनिक है, कलरफुल है, शाइनिंग वाला है, तो यू विल बाई दैट। करेक्ट। डम मीन्स, तो इसके लिए एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, आप पता है, एक बास्केट जैसा रहेगा, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट डाल देते हैं और वो बहुत ही अच्छा होता है जो आप तुरंत खरीद सकते हैं। डिस्प्ले केसेस, सो ये ग्लास और एक्रेलिक का शोकेसिंग केस होता है जो चेकआउट के आसपास रहता है। Then we have a signage. So banner, signs or poster placed near checkout area. So this is also makes sense. Suppose you have a many credit cards and that store is offering you the, if you buy from that credit card, you will get the cash back, correct? Or some kind of product, buy for 5,000 rupees and we'll give you 2% cash back immediately. So that kind of thing. Product dispensers or devices that dispense products such as a candy or gum. So this is very simple one. If you find any store or whenever near to checkout, it will be. And it can be a center point also. So immediate, like I said, immediately buying decision. So you can have a candy, gums, toys also, small toys, something very basic need, and where you don't think, don't take a lot of time to decide. Interactive display. So as I said that create interaction between customer and the brand. So like a touch screen, kiosk near checkout again. Then impulse purchase display designed to encourage impulse buying. So suppose you are doing a billing and at the cash counter you have a lot of chocolates
few medicine like headache cream, ointment kind of things, or bandage, correct? So that all you buy immediately. You won't think, no, this is the great, I need to buy. Then we have a checkout lane display. Display plays directly in checkout lane. So means what? Few products like bakery, correct? I'm just giving you example so you can understand. So in bakery, what happen? They won't keep at last moment. They will keep in the beginning. Yes, of course, inside somewhere will be there, but when you are checking out, there will be a lot of biscuits will be on a display, so you can buy. Correct. Now I'll give you example in for the jewelry shop also, which is premium luxury showroom. So they'll keep whenever you are going, just for the billing, they will ask you, would you like for the go for saving scheme, either gold saving scheme and blah blah blah. Or if you go to the diamond showroom, there also they will ask, can I save this? Can I save your money for the future buying? Correct. They will show you carat wise. Some things offer something they will give you immediately, and you'll be interested. But remember, when prices are very high, you take a time to decide. Correct. But still, brands are trying because they know when they talk about the shaving, when talk about the future, customer will definitely create a lot of attention for that talk. सो साइनेज का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का इंफॉर्मेशन बैनर के रूप में होता है। ये एक्रेलिक शीट पे हो सकता है, पोस्टर हो सकता है, और चेकआउट एरिया में लगा रहता है। जैसे मान लीजिए कि हमने बोला आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आप स्वाइप कीजिए, 5% कैशबैक आएगा, 5,000 से ज्यादा का परचेजिंग कीजिए, हम 2% कैशबैक दे देंगे, ब्ला ब्ला। देन प्रोडक्ट डिस्पेंसर, तो ये एक प्रकार का डिस्पेंसर होता है, जिसे आप कुछ नंबर दबाएंगे तो कैंडी वगैरह आ जाएगा, तुरंत परचेस कर सकते हैं इमीडिएटली खाने के लिए। करेक्ट। तो एक ये डिस्पेंसर ना बहुत अभी कॉमन है, बहुत सारे एरिया में मिल जाएगा। जैसे आप एयरपोर्ट जाएं या फिर लॉन्जिंग एरिया में, आप लॉन्च जहाँ होते हैं वहां पे मिल जाते हैं। फिर आपको आजकल प्रीमियम लग्जरी स्टोर में भी मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई वॉच के शोरूम में गए, बहुत बड़ा शोरूम है, करेक्ट, या किसी मॉल, कोई मॉल बहुत ही प्रीमियम मॉल है, उसके अंदर गए, तो वहां पे ये सारी चीजें आपको मिलती हैं कि इमीडिएट आपकी चीजें, आपकी जरूरतें पूरी हो जाए, नथिंग एल्स। फिर इंटरेक्टिव डिस्प्ले, तो जहाँ ऐसा डिस्प्ले जहाँ पे कस्टमर अपने आप को अटेंशन देता है और बोलता है भाई चेक करना चाहिए, तो टच स्क्रीन, तो टच करके इंफॉर्मेशन लेगा। फिर कुछ कियोस्क हो जहाँ पे गेम होगा, फन एक्टिविटी होगा, उसके वजह से बिजनेस को बढ़ाने का आइडिया होगा और कस्टमर के बाइंग हैबिट को पॉजिटिवली हम परचेस की तरफ लेके जा सकते हैं। देन इम्पल्स परचेस डिस्प्ले, तो याद रखिएगा ये एक प्रकार का ऐसा डिस्प्ले होता है, जनरली आपको नॉर्मली आपको कैश काउंटर पे ही मिलेगा, तुरंत, इमीडिएटली बाइंग। तो इट कैन बी बेसिक मेडिसिन फॉर योर हेडेक, it can be like kind of bandage, chocolate, and kind of a small notebook, pen, correct? Keyring. There are a lot of things that I cannot say in this my video. There are a lot of things. Okay. बहुत सारा चीज होता है जो हम बोल नहीं सकते इस वीडियो में। तो चेकआउट लेन डिस्प्ले, सो डिस्प्ले प्लेस डायरेक्टली इन चेकआउट लेन। सो जैसे मान लीजिए कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि जब आप बाहर की तरफ निकलते हैं बिलिंग के लिए, उस समय आपको मिल जाता है। तो जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, किसी आप डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएं, तो आप पूरा सामान आप तो खरीद लेते हैं, लास्ट में आपको मिलता है बेकरी वाला, एकदम कैश काउंटर के एकदम अपोजिट में रहता है। क्यों? क्योंकि वो तुरंत आप खरीदते हैं, कोई डिसीजन नहीं बनाते हैं, सोचते नहीं है, तुरंत ले लेते हैं। ठीक है। अब यही चीज हम अगर हम ज्वेलरी शॉप में जाएं, तो वहां भी होता है। जैसे मैंने आपने डिसीजन ले लिया कि हम ये पर्टिकुलर बैंगल या कुछ खरीद रहे हैं, गोल्ड ले रहे हैं। जब आप कैश काउंटर लेन से की तरफ जाएंगे, तो एक बंदा आएगा, बोलेगा सर हमारे पास गोल्ड सेविंग स्कीम है, करेक्ट? तो आपको बताएगा कि ये फ्यूचर सेविंग है एंड ऑल दैट थिंग। तो एक ह्यूमन का टेंडेंसी होता है कि जो भी उसको सेविंग के बारे में बताता है, उसका सिक्योरिटी के बारे में बताता है, तो उसमें वो उसका इंटरेस्ट आ जाता है। भले वो ना ले, वो दैट इज डिफरेंट। फिर डायमंड स्टोर में भी जाएंगे तो वहां पे भी ये बात होता है। फिर जो बिग ब्रांड्स हैं वहां पे भी ये बातें होती हैं। और आप जैसे बड़े बड़े मॉल में भी जाएं जो बहुत प्रीमियम होते हैं, वहां पे भी ये सब चीजें होती हैं। मतलब कैसे हम आपके बाइंग को पॉजिटिवली कन्वर्ट कर सके नंबर में। लेकिन कुछ गलत नहीं है, नथिंग इज रॉन्ग।
बट रिमेंबर वन थिंग, इफ द प्राइस इज हाई, कीमत ज्यादा है, तो कस्टमर सोचेगा। करेक्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। आज के लिए बस इतना ही मेरे तरफ से। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो में जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अगर इफ यू लाइक माय नॉलेज प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, नथिंग एल्स। फिर से एक नए वीडियो के साथ आएंगे। धन्यवाद।